बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Dear students, I hope you will be fine. Today we are going to start another lecture of signal and system course. Today we will be talking about the convolution sum for discrete time signals. What we are going to discuss in this lecture is just an introduction of the convolution process, and we will take a few examples of how to perform this convolution operation between the signals, input signal x of n, and the impulse response of the system, which we normally denote by h of n. In the last lecture we have discussed that any signal, arbitrary signal x of n, can be represented in the form of weighted unit impulse functions. So if we have already represented a signal in the form of impulse functions, it becomes quite easy to determine output y of n for any input signal x of n. So today we will elaborate that process, and we will take a few examples of the discrete time signals x of n and impulse response of the system, and for them we will compute output y of n. So let's start today's lecture. So basically what we have, that we have a discrete time signal x of n at the input of our system, and this system through which this signal passes, it has an impulse response h of n. So we assume that impulse response of this system is known. We already know the impulse response of the system. How can we determine the impulse response of a system? That we have discussed in the previous lecture, that if for any system, if you set the input as impulse function, if x of n is equals to delta n, then in that case whatever is the output of the system, that is called the impulse response of the system. So let's suppose we know the impulse response of the system hn. So अगर हमें hn impulse response system का पता है, तो इस system को हम कोई भी input, arbitrary input x of n अगर दे रहे हैं, तो इस केस में y of n हमारे पास क्या होगी. सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो आउटपुट आ रही है y of n आपके पास, ये कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा बिटवीन इनपुट एंड इम्पल्स रिस्पांस, सो दैट यू विल गेट द आउटपुट y of n. सो लास्ट लेक्चर में भी हमने इस ऑपरेशन के बारे में थोड़ी सी बात की थी कि if you know the input of the system and if you know the impulse response of the system, the output y of n is convolution of x of n multiplied with convolution of x of n and h of n. And convolution is sort of multiplication operation, but it is not simple multiplication. It is shifted multiplication in which we shift one signal, and today we will see how do we shift that signal, और फिर उस shifted signal को हम x of n के साथ multiply करते हैं. So then we will get our required output. So mathematically this thing is written like this: y of n is x of k h of n minus k, where k goes from minus infinity to plus infinity. In this case x of k is our input signal, which in this case we have fixed that signal x of k, and h of n minus k we are going to shift that signal for different values of n. The same procedure can also be obtained. अगर आप ये ऐसे भी हो सकता है कि अगर आप h of k को फिक्स्ड कर लें और x को जो है वो आप शिफ्ट करें. सो इन दोनों सिग्नल में से किसी एक को आप शिफ्ट कर सकते हैं, एंड इन बोथ केसेस यू विल गेट एग्जैक्टली द सेम रिजल्ट्स. सो अगर आप चाहें तो x को शिफ्ट कर दें, इनपुट सिग्नल को शिफ्ट कर लें, और अगर आप चाहें तो इम्पल्स रिस्पांस को शिफ्ट कर लें. सो इन दोनों सिग्नल में से एक को आपने जो है वो
फिक्स्ड रखना है और दूसरे को आपने शिफ्ट करना है डिफरेंट फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ एन। और ये अगेन आपकी चॉइस है कि आप कौन से सिग्नल को शिफ्ट करते हैं। अगर आप चाहें तो h को शिफ्ट कर लें, अगर आप चाहें तो x को शिफ्ट कर लें, and in both cases you will get the same result. Okay, so let's take a very simple example. We start with a very simple example. Let's suppose we are given that impulse response of a system is this one, h of n. It is non-zero only at 3 points, and the points are 0, 1 and 2, and the signal x of n, input signal x of n, is just non-zero at 2 points. So these both of these signals are finite duration signals, finite duration sequences normally they are called. So finite duration, a finite duration signal is the one which starts from some finite number and it ends at some finite number. For example, ये h of n जो है आपके पास, इसकी फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू इज़ एट n इज इक्वल्स टू 0 और इसकी जो लास्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू है दैट इज़ एट n इज इक्वल्स टू 2. सो इट इज़ अ फिनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंस. सिमिलरली जो x ऑफ n है, इसकी भी जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू है दैट इज़ at 0 and its last non-zero value is at 1. So this signal only exists for 2 points, n is equals to 0 and n is equals to 1. So we have to compute the output of y of n for these two signals. If we are given this is our h of n, this is our x of n, how do we compute y of n? So as we discussed in the previous slide, y of n is given like this: k goes from minus infinity to plus infinity, a summation from minus infinity to plus infinity, x of k and h of n minus k. So इस केस में ये जो हमारे पास ये एग्जांपल है, चूँकि ये बहुत सिंपलर केस है, अब यहाँ पे आपके पास जो x ऑफ n है या x ऑफ k है, दिस इज़ जस्ट अ नोटेशनल डिफरेंस. ये x ऑफ n भी हो सकता है और x ऑफ k भी हो सकता है. अगर आप इसको x ऑफ k के तौर पे प्लॉट करना चाहें तो ये वेरिएबल k हो जाएगा एंड देन इट विल बी x ऑफ k. सिमिलरली h ऑफ k आपको मिलेगा. ये वेरिएबल अगर आप इसको एज ए k इंडिपेंडेंट वेरिएबल को k नाम दे दें तो देन इट विल बी h ऑफ k. सो x ऑफ k और h ऑफ n माइनस k को आपने मल्टीप्लाई करना है और समेशन लेनी है, आपने तमाम वैल्यूज़ को सम करना है for different values of k which range from minus infinity to plus infinity. Now in this particular case if we see closely तो हमारा ये जो सिग्नल है x of k या x of n, it is only non-zero for two values of k which are 0 and 1. So अगर for example मैं यहाँ पे इस इक्वेशन में अगर इस समेशन को मैं ओपन करूँ तो फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ k, इसमें से हर एक k की वैल्यू के लिए कोई ना कोई एक टर्म आएगी. मसलन अगर मैं k इज इक्वल्स टू -2 के लिए टर्म लिखूं तो वो आएगी x ऑफ -2 h ऑफ n प्लस 2. बट x ऑफ -2 इज़ 0. 2 पे जो है वो -2 पे या -1 पे x की वैल्यू जो है वो 0 है. तो इस वजह से ये वैल्यू h की जो भी वैल्यू हुई तो उसके साथ जब मल्टीप्लाई होगी तो रिजल्ट विल बी इक्वल्स टू 0. सो इट मीन्स कि समेशन में ये तमाम टर्म्स जो k इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 तक हैं, दे will not contribute because for these values of k, x of k is equals to 0. so summation सिर्फ आपके पास दो पॉइंट्स पे रह जाएगी, k इज इक्वल्स टू 0 के लिए और k इज इक्वल्स टू 1 के लिए, क्योंकि ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे x ऑफ k की वैल्यू जो है वो नॉन ज़ीरो है. माइनस इन्फिनिटी से -1 तक x ऑफ k 0 है और 2 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक भी x ऑफ k जो है वो 0 है. सो इन पॉइंट्स को समेशन में लेने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि उसमें जो हमारे पास x ऑफ k है वो 0 है, तो वो h की जो भी वैल्यू होगी उसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो वो उसको भी 0 कर देगा. सो इस वजह से this summation simply reduces to these points for k is equals to 0 to 1 because only at these 2 points x of k has a non-zero value
else at every other point x of k is equals to 0. So it doesn't make any sense to take that term in summation because the final result will be equals to 0. So 0 को आप जितनी दफ़ा भी मर्जी ऐड करते जाएंगे तो वो आपके पास रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं डालेगा. सो इस वजह से ये समेशन जो ओरिजिनली माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक थी, ये इट विल चेंज इनटू for k is equals to 0 to k is equals to 1. So it means basically it will only have two terms, one for k is equals to 0, and अगर हम वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा x of 0 h of n because n minus 0 is n, और प्लस x of 1 k की वैल्यू अगर 1 पुट करें h of n minus 1. सो ओवरऑल हमारी आउटपुट का जो रिजल्ट है वो जस्ट इन दो टर्म्स के इक्वल है, x of 0 h of n प्लस x of 1 h of n minus 1. ओके, सो यही बात जो अभी मैंने की है कि y of n is simply equals to, अगर आप समेशन को ओपन करें, x of 0 h of n minus 0 plus x of 1 h of n minus 1. Now we know कि x of 0 की वैल्यू जो है वो क्या है, x of 0 was equals to 0.5. So 0.5 multiplied with h of n plus x of 1 is equals to 2. So 2 multiplied with h of n minus 1. So in the previous slide we were given h of n. तो h of n जो था वो 0, 1, 2 पे उसकी वैल्यू 1 थी. अगर हम इसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.5 एच एन क्या होगा कि इस सिग्नल का एम्पलीट्यूड जो है वो इन तीनों पॉइंट्स पे 0.5 हो जाएगा. सो दिस इज़ जस्ट एन एम्पलीट्यूड स्केलिंग ऑफ द सिग्नल. तो ओरिजिनल एच ऑफ एन जो है वो 0, 1 और 2 इन तीन पॉइंट्स पे 1 था. सो जब आप इसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड स्केलिंग कर रहे हैं, तो 0.5 एच ऑफ एन will simply have an amplitude equals to 0.5 at these 3 points 0, 1 and 2. Similarly 2h of n minus 1. So now we have to do two operations over here. We have h of n, हमारे पास impulse response है, उस impulse response से हमने एक signal generate करना है which is 2h of n minus 1. So we need to perform two operations over here. उनमें से एक operation ये है कि हमें h of n से h of n minus 1 चाहिए, which means टाइम शिफ्टिंग. ये टाइम शिफ्टिंग जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो वही टाइम शिफ्टिंग हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे h ऑफ n से h ऑफ n माइनस 1 जनरेट करने के लिए. सो एक ऑपरेशन तो ये है कि आपने h ऑफ n से h ऑफ n माइनस 1 जनरेट करना है, और दूसरा क्या है कि इसकी एम्पलीट्यूड स्केलिंग भी करनी है, इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना है. सो लेट्स फर्स्ट सी कि h ऑफ n से h ऑफ n माइनस 1 क्या आएगा. h ऑफ n जो हमारे पास था प्रीवियस स्लाइड में, दैट वाज non-zero at 3 points 0, 1 and 2, and h of n minus 1 means that we are going to shift that signal towards right by 1 unit. So अगर हम 1 unit से इसको shift कर दें तो 0 वाली वैल्यू 1 पे आ जाएगी, 1 वाली वैल्यू 2 पे आ जाएगी, 2 वाली वैल्यू 3 पे आ जाएगी. So जो आपके पास, और इसको साथ अगर आप 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें, एम्पलीट्यूड स्केलिंग भी कर दें, तो व्हाट विल हैपन कि इसका एम्पलीट्यूड जो इन तीनों पॉइंट्स पे एच ऑफ एन के केस में 1 था, अब वो एम्पलीट्यूड भी 2 हो जाएगा. सो 2 एच ऑफ एन माइनस 1 कंबाइंस 2 ऑपरेशन. एक 1 यूनिट की शिफ्टिंग है टूवर्ड्स राइट, और उस शिफ्टिंग का रिजल्ट ये हुआ कि ओरिजिनल सिग्नल जो है वो उसकी नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ एक यूनिट जो हैं टूवर्ड्स राइट शिफ्ट हो गई हैं. सो 0 से वैल्यू 1 पे आ गई है, 1 से 2 पे आ गई है, और 2 से 3 पे आ गई है. और जब हमने इनको 2 से मल्टीप्लाई किया है तो इनका एम्पलीट्यूड भी 1 के बजाय 2 हो गया है. सो इन दो सिग्नल्स को हमने ऐड करना है टू जनरेट द आउटपुट 0.5 एच एन प्लस 2 एच ऑफ एन माइनस 1. सो ये एडिशन किस तरह से होगी, दिस इज़ जस्ट पॉइंट बाय पॉइंट एडिशन. इस सिग्नल की वैल्यू 0 पे 0.5 है, इस सिग्नल की वैल्यू 0 पे 0 है. सो ये जब हम इन दोनों पॉइंट्स को ऐड करेंगे तो y ऑफ n की वैल्यू 0 पे 0.5 आ जाएगी. सिमिलरली मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप, n इज इक्वल्स टू 1 के लिए इस सिग्नल की वैल्यू 0.5 है, इस सिग्नल की वैल्यू जो है वो 2 है. तो ये दोनों जब ऐड होंगे तो 0.5 प्लस 2 and the y of n will have an amplitude of 2.5 at for n is equals to 1. Similarly
0.2 पे भी ऐसे ही होगा। इसका एम्पलीट्यूड जो है ये 2 है, इसका एम्पलीट्यूड 0.5 है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो यू विल गेट 2.5 amplitude for y of n at n is equals to 2, and similarly at n is equals to 3 इस सिग्नल का एम्पलीट्यूड 0 है, इस सिग्नल का एम्पलीट्यूड 2 है, so you will get 2. So your y of n is non-zero for 4 points 0, 1, 2 and 3. So this was very simple example जिसमें हम सिंपली हमने ये समेशन को ओपन किया, ये दो इक्वेशंस आ गई और जो रिजल्टेंट सिग्नल थे हमने एच ऑफ एन और एच ऑफ एन माइनस वन वो जनरेट किए, उनको एम्पलीट्यूड स्केल किया और इन पॉइंट्स को सिंपली ऐड कर दिया तो वी ऑब्टेन वाई ऑफ एन. सो फॉर सिंपल केसेस यू कैन डू दैट, बट दैट दिस टेक्निक कैन ओनली बी अप्लाइड फॉर वेरी सिंपल केसेस जिसमें आपके पास एक्स ऑफ एन में सिर्फ चंद एक नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ हों, एक 2 या 3 नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ हों और एच ऑफ एन भी सिमिलरली इस तरह का हो. बट जनरली जो हमारे पास एग्जांपल्स नेक्स्ट इससे आएंगी तो उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास सिग्नल्स जो हैं वो इतने सिंपल फॉर्म में शायद नहीं होते, तो उस केस में हम एक प्रोसीजर डिवाइस करेंगे कि इस प्रोसीजर के तहत इसको एक सिस्टमेटिक वे में इस ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाए. Okay, so here again we have the same signal x of k and h of k या x of n और h of n. इम्पल्स रिस्पांस और जो इनपुट सिग्नल हैं ये वही एग्जैक्टली सेम सिग्नल हैं जो आपके पास एग्जांपल 2.1 में थे, but in this case we will do this example in a slightly different manner जो कि ज़्यादा जनरलाइज्ड फॉर्म है. सो ये जो टेक्निक हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इस एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए, ये आप किसी भी सिग्नल्स के लिए, किसी भी सिग्नल्स के लिए कोई किसी भी फॉर्म के एक्स ऑफ एन और एच ऑफ एन हो तो उसके लिए आप परफॉर्म कर सकते हैं. ये ज़्यादा जनरलाइज्ड फॉर्म है. पहले जो हमारे एग्जांपल थी 2.1 उसमें तो हमने थ्रू इक्वेशन ये चीज़ सॉल्व की थी, लेकिन अब हम इसमें से एक सिग्नल को फिक्स रखेंगे और दूसरे सिग्नल को शिफ्ट करेंगे. और while this shifting one signal we will see कि क्या ये x ऑफ k के साथ जिस सिग्नल को हमने फिक्स्ड रखा हुआ है क्या उसके साथ ये ओवरलैप कर रहा है या ओवरलैप नहीं कर रहा. सो जहाँ पे ये ओवरलैप नहीं कर रहा होगा वहाँ पे कन्वोल्यूशन का जो रिज़ल्ट होगा दैट वुड बी इक्वल्स टू 0, और जहाँ पे ये ओवरलैप जो है वो होगा वहाँ पे आपके पास कन्वोल्यूशन का रिज़ल्ट जो है वो आपके पास नॉन ज़ीरो सिर्फ वहाँ पे आएगा जहाँ पे देयर इज सम ओवरलैप between this h of n minus k and x of k. So where there is no overlap the result of convolution will be equals to 0, and where there is some non-zero overlap the result of convolution will only be non-zero there. So let's see कि हमारे पास h of n minus k कैसा सिग्नल है या किस तरह से हम उसको ड्रा करते हैं. रिमेंबर दैट कि ओरिजिनल जो हमारे पास सिग्नल था h ऑफ k दैट वाज 1 एट 3 पॉइंट्स 0, 1 और 2 पे वो 1 था h ऑफ k. सो इसमें जो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि उस h ऑफ k को आपने रिफ्लेक्ट कर देना है. यू हैव टू टेक अ मिरर इमेज ऑफ दैट सिग्नल अराउंड दिस वर्टिकल एक्सिस. जो हम ऑपरेशन पढ़ चुके हैं रिफ्लेक्शन का जिसमें किसी भी सिग्नल को आप रिफ्लेक्ट करते हैं तो वो क्या होता है कि इस वर्टिकल एक्सिस के अलांग एक मिरर इमेज आ जाता है दूसरी साइड पे उस सिग्नल का. सो ओरिजिनल सिग्नल जो था वो आपके पास n इज इक्वल्स टू 0, 1, 2 पे नॉन ज़ीरो था. जब आप इसको रिफ्लेक्ट करेंगे तो दैट सिग्नल विल बी h ऑफ माइनस के एंड दैट विल बी नॉन ज़ीरो एट 3 पॉइंट्स 0, -1 एंड -2. सो पहले आपके पास वो सिग्नल 0, 1, 2 यानी 0 और 2 पॉजिटिव वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करता था. अब वो 0 और 2 नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए एग्जिस्ट करेगा. एक मिरर इमेज है उस सिग्नल का. सो दिस सिग्नल जो आपने जिसको रिफ्लेक्ट किया, अभी हमने कोई शिफ्टिंग नहीं की, सो दिस इज कॉल्ड h ऑफ माइनस के या हम इसको h ऑफ 0 माइनस के भी कहते हैं.
सिर्फ रिफ्लेक्शन जब आपने उस सिग्नल की अभी उसको कोई शिफ्ट नहीं किया, तो आपके पास जो है वो h ऑफ 0 माइनस के कहलाता है, या h ऑफ माइनस के जो है वो आपके पास कहलाता है वो सिग्नल। सो रिफ्लेक्शन के बाद हम इस सिग्नल को शिफ्ट भी कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें हम इसको एक यूनिट और इस तरफ शिफ्ट करते हैं टूवर्ड्स दिस साइड। अगर हम इस तरफ शिफ्ट करते हैं एक यूनिट इस सिग्नल को, तो इस वक्त जो सिग्नल एग्जिस्ट करता है 0, -1 और -2 पे। अगर मैं इसको एक यूनिट और इस साइड पे शिफ्ट कर दूं, तो इसकी फर्स्ट वैल्यू, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ये वाली वैल्यू -3 पे चली जाएगी, ये वाली वैल्यू -2 पे आ जाएगी, और ये वाली वैल्यू -1 पे आ जाएगी। सो देन इट विल बी h ऑफ -1 के, क्योंकि -1 की आपने इसमें जो है वो शिफ्टिंग की है, -1 की आपने इसमें शिफ्टिंग की है। सो दिस विल बी h ऑफ -1 के, एंड h ऑफ -1 के विल बी नॉन जीरो एट 3 पॉइंट्स -3, -2 एंड -1। सो अगर आप देखें h ऑफ -1 के, तो ये -3, -2, -1 पे नॉन ज़ीरो है, और x ऑफ के कहाँ पे नॉन ज़ीरो है, 0 और 1 पे नॉन ज़ीरो है। इन दोनों के दरमियान कोई ओवरलैप नहीं है, इनकी कोई नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ आपस में कोइंसाइड नहीं कर रही, क्योंकि जहाँ पे ये सिग्नल नॉन ज़ीरो होगा h ऑफ -1 के, वहाँ पे ये वाला सिग्नल आपके पास जो है वो ज़ीरो है, और जिन पॉइंट्स पे ये वाला सिग्नल नॉन ज़ीरो है उन पे h ऑफ -1 के जो होगा वो ज़ीरो होगा। सो इट मीन्स कि इनके दरमियान कोई ओवरलैप नहीं है। जब कोई ओवरलैप नहीं है तो इसका मतलब ये होगा कि कन्वोलूशन का रिजल्ट आपके पास ज़ीरो आएगा। सो अगर आप y ऑफ -1 कैलकुलेट करें, क्योंकि ये आपने -1 की शिफ्ट की, n की वैल्यू आपने बेसिकली -1 रखी h ऑफ -1 के में, तो y ऑफ -1 विल बी इक्वल्स टू 0। इसी तरह से अगर मैं इसको -2 शिफ्ट कर दो, तो ये बजाय एक यूनिट इधर जाने के ये 2 यूनिट्स इधर चला जाएगा। सो -2 वाली वैल्यू -4 पे आ जाएगी, -1 वाली वैल्यू -3 पे आ जाएगी, 0 वाली वैल्यू जो है वो -2 पे आ जाएगी। अगेन देयर विल बी no overlap between non-zero values of this signal and this signal. So again the convolution operation result will be equals to 0. ये शिफ्ट कितने की थी, अगर हमने -2 की शिफ्ट की तो दिस वाज h ऑफ -2 के, सो ये -2 की शिफ्ट थी, सो इसका मतलब है n वाज इक्वल्स टू -2, सो y ऑफ -2 भी आपके पास 0 होगा। इसी तरह से अगर आप इसको और n की किसी भी और वैल्यू के लिए जो नेगेटिव हो, -3, -10, -15, -20, ये शिफ्ट करते जाएं, तो ये सिग्नल और इस साइड पे आपके पास जाता जाएगा, लेफ़्ट साइड पे जाता जाएगा, और उस केस में भी इस सिग्नल का इस सिग्नल के साथ कोई ओवरलैप पॉसिबल नहीं है। सो इसका मतलब है फ्रॉम n इज इक्वल्स टू -infinity till n is equals to -1, there is no overlap between this signal and this signal, hence the result of convolution will remain 0 between from -infinity up till point n is equals to -1। ठीक है। सो ये प्रोसीजर है, इसको हम बाकायदा फार्मूलेट भी करेंगे, सारे प्रोसीजर को हम स्टेप्स की फॉर्म में भी जो है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये एग्जांपल हम उस जनरल प्रोसीजर के तहत, अगेन एग्जांपल तो वही है, रिजल्ट भी वही आएगा जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये ज़्यादा जनरल फॉर्मेट है जिसमें आप किसी भी दो सिग्नल की कन्वोलूशन इस मेथड से परफॉर्म कर सकते हैं। सो इसको पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, डिस्कस कर रहे हैं एग्जांपल के थ्रू, और फिर इस सारे प्रोसीजर को हम बाकायदा स्टेप्स की फॉर्म में लिखेंगे कि हाउ मेनी डिफरेंट स्टेप्स आर देयर एंड व्हाट यू हैव टू डू इन दीज स्टेप्स। सो ये आपने पहला इंटरवल, बेसिकली ये एक इंटरवल होता है जहाँ पे कन्वोलूशन का रिजल्ट एक रेंज में सेम रहता है, दैट डिफाइंस वन इंटरवल। सो -infinity से लेके -1 तक एक इंटरवल है जिसमें कन्वोलूशन का रिजल्ट आपके पास 0 आ रहा है, और 0 आने की वजह यह है कि नॉन ज़ीरो values of this signal and this signal they are not overlapping। जहाँ पे नॉन ज़ीरो वैल्यूज़
का ओवरलैप नहीं होगा, जब तक नहीं होगा तो कन्वोल्यूशन का रिजल्ट 0 रहेगा. सो दैट डिफाइंस फर्स्ट इंटरवल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टिल पॉइंट n is equals to -1. Now let's come on to the next point, which is h of, let's suppose this shift is n is equals to 0, which is this signal h of 0 minus k. जब आप किसी भी impulse response के सिग्नल को जस्ट रिफ्लेक्ट कर दें, सिर्फ रिफ्लेक्ट किया आपने, कोई शिफ्ट नहीं की, तो ओरिजिनली अगर वो h ऑफ k था तो वो h ऑफ माइनस k बन जाएगा, और विदाउट एनी शिफ्टिंग दैट इज आल्सो नोन एज h ऑफ 0 माइनस k. सो h ऑफ 0 माइनस k और h ऑफ माइनस k आर द सेम सिग्नल्स. यानी इसका मतलब ये है कि आपने कोई उसको शिफ्ट नहीं किया, उसमें शिफ्ट जो है वो 0 की है. सो दिस इज h ऑफ 0 माइनस k. नाउ इन दिस केस यू कैन सी कि there is an overlap of non-zero values. 0 पे x की वैल्यू 0.5 है, 0 पे इस सिग्नल की वैल्यू 1 है. सो एक वैल्यू का ओवरलैप है. One value of this signal is overlapping with one value of this signal. So इस वजह से आपके पास जो y of 0 आएगा according to this equation, x of 0 h of 0 minus k, and x of 0 की वैल्यू हमें पता है 0.5 है, h of 0 minus k की वैल्यू 1 है. So 0.5 multiplied by 1, so y of 0 जो है that will be equals to 0.5. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप. लास्ट में हमने h ऑफ 0 माइनस के तक जो है वो कर लिया था. अब एक और शिफ्ट करते हैं हम इसको टूवर्ड्स राइट. अब हम इस साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं. पहले तो जस्ट h ऑफ 0 माइनस के में मैंने आपको बताया कि शिफ्टिंग कोई नहीं है. यू जस्ट टोक द रिफ्लेक्टेड सिग्नल जो h ऑफ k था उसका अराउंड the y-axis, around the vertical axis आपने एक मिरर इमेज ले लिया, तो that was h of minus k या h of 0 minus k. अब उस h of 0 minus k को शिफ्ट करते हैं towards right. अगर हम towards right शिफ्ट करेंगे तो उसकी 0 वाली एक यूनिट की ये शिफ्ट है, तो 0 वाली वैल्यू 1 पे आ जाएगी, -1 वाली वैल्यू 0 पे आ जाएगी, और -2 वाली वैल्यू -1 पे आ जाएगी. अब अगर आप इस सिग्नल की ये दो वैल्यूज़ देखें, इन दो वैल्यूज़ का ओवरलैप है विद द वैल्यूज़ ऑफ नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ ऑफ x, क्योंकि x की भी दो ही नॉन ज़ीरो वैल्यू थी, एक 0 पे और एक 1 पे, और इस सिग्नल की भी दो नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ जो हैं उनका x के साथ ओवरलैप है. सो अगर हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो ये इस तरह से लिखा जा सकता है, x ऑफ 0 h ऑफ 1 माइनस k प्लस x ऑफ 1 h ऑफ 1 माइनस k. ठीक है, और यहाँ पे हमने n की जगह पे 1 पुट किया है. सो वी आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ y1. हम y1 सिग्नल की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो n की जगह हमने 1 पुट कर दिया. तो जब k को 0 पुट करेंगे तो दिस विल बिकम x ऑफ 0 h ऑफ 1. k को अगर मैं 0 पुट कर दूं, और अगर मैं k को जो है वो 1 पुट कर दूं, दिस विल बिकम x ऑफ 1 h ऑफ 0. यानी x ऑफ 0, द वैल्यू ऑफ सिग्नल x एट n इज इक्वल टू 0 विल बी मल्टीप्लाइड विद द वैल्यू ऑफ impulse response h value which is present at n is equals to 1, and similarly the value of signal x at n is equals to 1 will be multiplied with value of h at n is equals to 0, and these values then will be added because of this summation. So x0 h of 1 plus x1 h of 0, so x0 is 0.5, h of 1 is 1, so 0.5 multiplied by 1 plus x1 h0, x1 is 2, h0 is 1, so 2 multiplied by 1, and again you will get the answer 2.5. so y of 1 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 2.5 आ रही है. इसी तरह से अगर नेक्स्ट एक और स्टेप कि अगर हम h को h ऑफ जो 0 माइनस के या h ऑफ माइनस के था, इसको 2 यूनिट्स शिफ्ट कर दें टूवर्ड्स दिस साइड, टूवर्ड्स राइट. अगर हम इसको 2 यूनिट्स शिफ्ट कर दें तो इसकी जो 0 वाली वैल्यू थी वो 2 पे चली जाएगी, जो -1 वाली वैल्यू थी वो 1 पे आ जाएगी, जो -2 वाली वैल्यू थी वो 0 पे आ जाएगी. सो अगेन अगर हम इस h ऑफ 2 माइनस के सिग्नल को देखें और अपने x के सिग्नल को देखें तो इनके दरमियान दो वैल्यूज़ का ओवरलैप है, क्योंकि x के जो है वो 0 और 1 पे नॉन ज़ीरो है, और यहाँ पे भी 0 और 1 पे नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ मौजूद हैं.
तो ये दो वैल्यूज़ आपस में ओवरलैप कर रही हैं। सो आपके पास जो y ऑफ 2 आएगा, इसी तरह से इस इक्वेशन में पुट करने से n को अगर आप 2 पुट कर दें तो x0 h ऑफ 2 माइनस 0 प्लस x1 h ऑफ 2 माइनस 1, k की वैल्यू 0 और 1 आप यहाँ पे इक्वेशन में पुट करें तो x0 h2, x0 is 0.5, h2 is 1 plus x1 h2, x1 is 2, h2 is sorry, this is h1, h2 minus 1 is h1, x1 h1, so x1 is 2, h1 is 1, so 0.5 multiplied by 1 plus 2 multiplied by 1, again you will get 2.5 at the answer y of 2. Similarly, next step, अगर हम इसको 3 यूनिट्स शिफ्ट कर दें h को टूवर्ड्स राइट, सो नाउ वी आर शिफ्टिंग इट विद 3 यूनिट्स, सो 0 वाली वैल्यू 3 पे आ जाएगी, -1 वाली वैल्यू 2 पे आ जाएगी, -2 वाली वैल्यू 1 पे आ जाएगी। सो अब अगर मैं इस सिग्नल का देखूं h ऑफ 3 माइनस के, इस सिग्नल का और अपने x ऑफ के इनपुट सिग्नल का ओवरलैप देखूं तो सिर्फ एक ही वैल्यू का ओवरलैप है, क्योंकि इनपुट सिग्नल जो है वो 0 और 1 पे नॉन ज़ीरो है, तो 0 पे तो ये अब 0 हो गया है, सिर्फ 1 वाली वैल्यू बच गई है जो इसमें और x ऑफ के में ओवरलैप कर रही है। सो आपके पास जो y of 3 आएगा, so this y of 3 will be equals to x0 h3 plus x1 h3, सिर्फ a की वैल्यू जो है वो आपके पास इसमें नॉन ओवरलैप है 2 multiplied by 1, so y of 3 जो है वो आपके पास 2 आएगा। और अगर आप इसको 3 से ज़्यादा शिफ्ट कर दें, ग्रेटर देन 3 कोई भी वैल्यू, प्लीज़ रिमेंबर ये डिस्क्रीट सिग्नल है, सो जब हम ग्रेटर देन 3 कहते हैं तो इसका मतलब है 4 5 6 ओनली इंटीजर शिफ्ट इज़ परमिजिबल, नॉन इंटीजर पॉइंट्स पे आप शिफ्ट नहीं कर सकते। सो व्हेन वी से ग्रेटर देन 3 इट मीन्स फॉर वैल्यूज ऑफ n विच आर 4 5 6 7 एनी इंटीजर विच इज़ ग्रेटर देन 3। सो अगर आप इसको किसी भी ऐसी वैल्यू के लिए जो ग्रेटर देन 3 है उसके लिए शिफ्ट करते हैं h को, तो फॉर एग्जांपल 4 के लिए अगर आप करें तो इसमें लीडिंग वैल्यू इसकी 4 पे चली जाएगी, ये वाली वैल्यू 3 पे आ जाएगी, ये वाली वैल्यू 2 पे आ जाएगी। अब h ऑफ 4 माइनस के में 2 3 4 पे इसकी नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ हैं और ये वैल्यूज़ ओवरलैप नहीं कर रही x ऑफ k के साथ, क्योंकि x ऑफ k की वैल्यू सिर्फ 0 और 1 पे नॉन ज़ीरो हैं। सिंस देयर इज़ नो ओवरलैप, so that's why the result of convolution will be 0 for n greater than equals to 3. So for those values of n which are greater than 3, there is no overlap between non-zero values of this impulse response and the input signal, hence the result of convolution will be equals to 0. So again this was the same example which we have already done, example in 2.1, but this example was done in slightly different manner and this is more generalized manner जिसमें हम दो discrete time signals के दरमियान overlap फाइंड करते हैं, वेरियस पॉइंट्स फाइंड करते हैं जहाँ पे उनके दरमियान ओवरलैप एग्जिस्ट करता है और फिर वो उससे हम कन्वोल्यूशन जो है उसको मालूम करते हैं। सो इसको हम बाकायदा, जैसे कि मैंने कहा कि इसको हम फार्मल फॉर्म में लिखेंगे, स्टेप्स की फॉर्म में लिखेंगे और फिर उसमें डिफरेंट इंटरवल्स आइडेंटिफाई भी करेंगे। बट दिस वाज जस्ट टू इंट्रोड्यूस दैट जनरली दिस प्रोसीजर इज़ डन यूजिंग this method instead of the first method which can only be applied in very simple cases. Okay, so now we move to example 2.3. In this case we are given that x of n is alpha raised to power n u of n and h of n is simply equals to u of n. So here there are a couple of points which you may note, and we have to perform the convolution operation for these two signals. X of n is alpha raised to power n u of n and h of n is equals to u of n. First, the value of alpha is between 0 and 1, so it means that this signal will be a decaying exponential signal. इसकी maximum value जो है that is at n is equals to 0. When n is equals to 0,
alpha raised to power 0 is 1, so that value is equals to u of n. चूंकि ये u of n से मल्टीप्लाई हो रहा है alpha raised to power n, so it only exists for positive values of n. रिमेंबर u of n क्या होता है, जो 0 से लेके इन्फिनिटी तक 1 होता है और माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 तक 0 होता है। अगर आपके पास सिग्नल x ऑफ n सिंपली अल्फा n होता तो फिर ये नेगेटिव n के लिए भी एग्जिस्ट करता, पॉजिटिव n के लिए भी एग्जिस्ट करता, लेकिन चूंकि ये u ऑफ n से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस वजह से ये सिर्फ पॉजिटिव n के लिए अब नॉन ज़ीरो है। जो इसके नेगेटिव पोर्शन था वो u ऑफ n से मल्टीप्लाई होने की वजह से ज़ीरो हो गया है। दूसरा h of n जो है that is equals to u of n, so that is simply starts from n is equals to 0 and goes up till n is equals to infinity, और n 0 से लेके infinity तक इस सिग्नल की जो वैल्यू है that is equals to 1, whereas इस सिग्नल की वैल्यू जो है ये हर नए पॉइंट पे, हर पॉइंट पे डिफरेंट है। यहाँ पे जो है 0 पे 1 है, n की वैल्यू 1 होगी तो इट वुड बी अल्फा, n की वैल्यू 2 होगी तो इट वुड बी अल्फा स्क्वायर, n की वैल्यू 3 होगी तो इट वुड बी अल्फा क्यूब। अब चूंकि अल्फा 0 और 1 के बीच में है तो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो अल्फा की वैल्यू अल्फा स्क्वायर से एम्पलीट्यूड में बड़ी होगी, अल्फा क्यूब अल्फा स्क्वायर से बड़ा होगा। सो दिस इज बेसिकली अ डिकेइंग एक्सपोनेंशियल जो कि 0 से लेके अप टिल इन्फिनिटी जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। सो इस सिग्नल को आपने कन्वॉल्व करना है h ऑफ n सिग्नल के साथ, जो कि इस केस में u ऑफ n के इक्वल है। नाउ इन दिस केस वन पॉइंट विच यू शुड रिमेंबर कि बोथ दीज सिग्नल्स आर ऑफ इनफिनिट ड्यूरेशन। इनफिनिट ड्यूरेशन से मुराद ये है कि ये सिग्नल 0 से स्टार्ट हो रहा है एंड इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन टिल n इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये एग्जैक्टली 0 होगा n इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे जाके। सिमिलरली जो h ऑफ n है विच इज इक्वल्स टू u ऑफ n, ये भी 0 से लेके इन्फिनिटी तक 1 है। सो दीज बोथ दीज सिग्नल्स आर इन्फिनिट ड्यूरेशन सिग्नल्स। पहले जो हम सिग्नल देख रहे थे वो फिनाइट ड्यूरेशन सिग्नल्स थे, जो किसी पॉइंट से स्टार्ट होते थे और फिर किसी पॉइंट पे जाके एंड हो जाते थे। लेकिन व्हेन वन एंड ऑफ द सिग्नल गोज अप टिल इन्फिनिटी, it is called an infinite duration signal. So these two signals which are infinite duration signals, we have to perform their convolution, and please remember that for infinite duration signals it is normally the method which is normally used is to use these कन्वोल्यूशन फार्मूलाज। वो जो मेथड इससे पहले हम पिछले स्लाइड में बात कर रहे थे कि आप उन सिग्नल्स को स्लाइड करते हैं और उनका ओवरलैप देखते हैं। चूँकि वो ओवरलैप उस वक्त तो देखना फिजिबल होता है जब सिग्नल जो है वो सिर्फ कुछ वैल्यूज़ के लिए ही एग्जिस्ट करें, लेकिन अगर वो इन्फिनिट ड्यूरेशन के लिए एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इट इज़ नॉर्मली नॉट फिजिबल कि आप उनको इंटरवल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके और फिर उन इंटरवल्स के ओवरलैपिंग पॉइंट देखें, क्योंकि देयर आर टू मैनी पॉइंट्स बिकॉज दीज आर इन्फिनिट ड्यूरेशन सिग्नल्स। सो इन्फिनिट ड्यूरेशन सिग्नल्स के लिए नॉर्मली हम जो कन्वोल्यूशन की इक्वेशन है उसी को यूज़ करते हैं और ग्राफिकल मेथड को यूज़ नहीं करते। जो पिछली स्लाइड में हम डिस्कस कर रहे थे दैट वाज ग्राफिकल मेथड, बट दैट मेथड इज़ नॉर्मली नॉट यूज्ड व्हेन यू हैव इन्फिनिट ड्यूरेशन सिग्नल्स। सो लेट्स सी कि इस केस में x ऑफ n इज अल्फा रेज टू पावर n, u ऑफ n, h ऑफ n इज u ऑफ n। अगर हम इनको k की फॉर्म में लिखें तो ये सिग्नल बन जाएंगे x ऑफ n विल बी अल्फा रेज टू पावर k, u ऑफ k एंड h ऑफ k विल बी सिंपली इक्वल्स टू u ऑफ k। सो x k h n माइनस k विल बी इक्वल्स टू अल्फा k फॉर k ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, लेस देन इक्वल टू n एंड 0 अदरवाइज। सो ये आपके पास जो समेशन थी ओरिजिनली फ्रॉम इट वाज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ये जो सिग्नल है आपके पास ये h ऑफ n है या h ऑफ k है। अगर मैं इस सिग्नल को रिफ्लेक्ट कर दूं, रिफ्लेक्ट का मतलब ये है कि इफ़ आई टेक द इमेज ऑफ दिस सिग्नल अराउंड दिस वर्टिकल एक्सिस, तो ये सारा का सारा सिग्नल जो है इस साइड से इधर आ जाएगा। सो h ऑफ 0 माइनस k जो है वो n इज इक्वल्स टू 0 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक आपके पास जो है वो एग्जिस्ट करेगा। माइनस 0 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक 1 होगा और 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक 0 होगा, विच इज़ h ऑफ 0 माइनस k।
जिसमें कोई शिफ्टिंग नहीं है, जस्ट रिफ्लेक्शन। और अगर मैं एच ऑफ -1 माइनस के कर दूं तो एच ऑफ -1 माइनस के मीन्स कि ये इस साइड पे एक शिफ्ट हो जाएगा। सो ये -1 से लेके -इन्फिनिटी तक 1 होगा, फिर इस सिग्नल और इस सिग्नल के दरमियान कोई ओवरलैप नहीं होगा, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल आप एच ऑफ 3 माइनस के लिखते हैं तो 3 मीन्स हेयर। सो इसकी कितनी वैल्यूज का ओवरलैप है, 1 2 3 4 वैल्यूज का ओवरलैप है, क्योंकि इसकी वैल्यूज 0 से स्टार्ट हो रही हैं, अप टिल इन्फिनिटी जा रही हैं, और एच ऑफ 3 माइनस के जो है वो 3 से स्टार्ट हो रहा है और टूवर्ड्स -इन्फिनिटी तक जा रहा है। सो कितनी वैल्यूज का ओवरलैप है, 4 वैल्यूज का ओवरलैप है, 0 से लेके 3 तक, 0 1 2 3। सो किसी भी टाइम पे जो ओवरलैप होगा वो 0 से लेके n तक होगा। सो 0 से लेके n तक जो भी है उसको आपने सम करना है टू फाइंड द रिजल्ट ऑफ दिस कन्वोल्यूशन। अगर आपके पास n3 है तो 4 वैल्यूज का ओवरलैप है। अगर आपके पास n10 होगा तो h ऑफ 10 माइनस के जो है वो 10 से लेके -इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट करेगा। सो ओवरलैप कहाँ से लेके कहाँ तक होगा, 0 से लेके आपके पास 10 तक होगा। सो ये इस वजह से जो समेशन का ये जो y ऑफ n आएगी आउटपुट, ये समेशन है which is going to start, always going to start from 0 and it will go up till the point जिस पॉइंट तक h ऑफ n एग्जिस्ट करता है, और वो पॉइंट n है, n की वैल्यू 3 है तो वो 3 तक एग्जिस्ट करता है, यानी 3 से -इन्फिनिटी, 10 है तो 10 से -इन्फिनिटी, 100 है तो 100 से -इन्फिनिटी। सो इन दो सिग्नल्स के दरमियान ओवरलैप कितना है वो डिपेंड करता है इस n की वैल्यू पे कि आपने h में n क्या सिलेक्ट किया हुआ है। h ऑफ 3 माइनस के में n 3 है, h ऑफ 10 माइनस के में n 10 है, h ऑफ 100 माइनस के में n 100 है। सो ऑलवेज देयर इज ओवरलैप ओवरलैप विल स्टार्ट फ्रॉम 0 से ओवरलैप इस वजह से स्टार्ट हो रहा है कि x ऑफ k सिग्नल जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, और ये ओवरलैप n तक इस वजह से होगा कि n तक जो है वो n वो नंबर है जहां तक आपका h ऑफ n माइनस के जो है वो नॉन ज़ीरो है, बाकी पॉइंट्स पे फिर वो ज़ीरो होगा। सो आपने इस चीज़ का बेसिकली सम लेना है फॉर एनी वैल्यू ऑफ n। मसलन y ऑफ n जो है अगर हम n की जगह 1 पुट कर दें तो y ऑफ 1 विल बी this summation k goes from 0 to 1 alpha raised to power k। जनरली जो इस तरह की आपके पास सीरीज़ होती है, ज्योमेट्रिक सीरीज़, उसका जो सम है वो इस फार्मूला से गिवन है कि इफ़ it starts from 0 and goes up till point n, so its sum is 1 minus alpha raised to power n plus 1 divided by 1 minus alpha। so अगर आप यहाँ पे अब n की कोई भी वैल्यू पुट कर दें, फॉर एग्जांपल n को 1 पुट कर दें तो ये y ऑफ 1 विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। अगर आप n को 0 पुट कर दें तो 1 माइनस अल्फा रेज टू पावर 1 which means 1 minus alpha divided by 1 minus alpha, so y of 0 will be equals to 1। so इस तरह से ये जनरल फार्मूला है to determine y of n for any value of n in this particular case। so ये जो एग्जांपल है इसके अंदर हमने जो है वो ये देखा कि जब आपके पास इन्फिनिट ड्यूरेशन के सीक्वेंस होते हैं इंस्टेड ऑफ फिनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंस, तो जनरली हम उनकी कन्वोल्यूशन मालूम करने के लिए जनरल फार्मूलाज यूज़ करते हैं और उनको उस तरह से इंटरवल्स में डिवाइड नहीं करते। सो दिस इज एग्जांपल जिसमें ये वेरियस सिग्नल जो हम बात कर रहे थे ये प्लॉट हुई हैं। दिस इज़ योर अगेन सेम x ऑफ k, ये आपके पास h ऑफ माइनस के है, ये h ऑफ 0 माइनस के है, ये h ऑफ 1 माइनस के है, ये h ऑफ से 10 माइनस के है। सो जाहिर सी बात है आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर ये h ऑफ 1 माइनस के है तो सिर्फ दो पॉइंट्स का ओवरलैप है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। और अगर ये h ऑफ से 10 माइनस के या सम n माइनस के है तो ओवरलैप कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके n तक है, क्योंकि h ऑफ n माइनस के सिर्फ 0 से n तक इस सिग्नल के साथ ओवरलैप कर रहा है। पहले वाली वैल्यूज क्यों ओवरलैप नहीं कर रही, क्योंकि उस केस में x ऑफ k 0 है, इस वजह से। सो ये आपके पास जो है ये एग्जांपल है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वे उसमें हम बात करेंगे ये जो हमने एग्जांपल 2 में बात की,
सो उसमें हम नेक्स्ट में जो लेक्चर में इंशाल्लाह हम बात करेंगे, ये जो हमने एग्जांपल 2 में बात की ग्राफिकल मेथड की, उस ग्राफिकल मेथड को हम बाकायदा फार्मल स्टेप की फॉर्म में लिखेंगे और फिर उसकी बेस पे कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो सॉल्व करेंगे। कन्वोल्यूशन की एग्जांपल्स जो जनरल फॉर्मेट में सॉल्व की जाती हैं। सो आई होप कि आज का लेक्चर जो है वो आपको समझ आएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। सो नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।